No. Boss, hello. Good morning. हाँ नमस्ते आजी. Good morning, sir. Good morning. किसको बोलते हैं? हाँ हाय. हाँ हाय बात कहाँ थे? Is that disturbing? हाँ, आजी. Okay, good morning, all of you. Let's start now. Hello. Yes, sir. Good morning. Have you completed your test? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So you get we get the result. You also get the result. You can see the score. Yes. How many marks you are getting? 11 out of 11, sir. Very good. So that means you are 11 out of 10, sir. 11 out of 10. okay. Very good. 11 out of 5. Yes. 11 out of 5. 11 out of 5. That means see that you are not reading properly. So you can't get it. That's why I said theory part is there, and compulsory in the board also you are have the 11 marks paper, right? So that's why Yes. 11 marks. I'm not giving any options over there. All you have to use compulsory. That means you can get it what how many marks we can get. Just like that we can take test each and every time. When I get the time, I make the I send you. You have to just check your knowledge, check your study, whatever you are learn. You can check yourself. Is it clear? Hello, hello. Yeah. Okay, now we will continue today. New topic, that is a Yes, sir. Thank yes. you, sir. Hello. Yes, sir. Wait. हाँ ओके सो वेलकम बैक अगेन. बहुत सारे जन अभी ज्वाइन होते हैं, लेट ज्वाइन होने की वजह से डिस्टरबेंस होता है. ओके सो अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाविद्यालय वसई वेस्ट टीवाई बीकॉम 5th सेम. सब्जेक्ट इज योर कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन and topic module 2. New topic it is going on, introduction to MySQL. This is the language. MySQL is a language. It is the RDBMS, relational database management system. So here we have to see how to keep the record, presented by assistant professor Bipin PYT. So we'll continue. What is MySQL? It is used for relational database management system. What do you mean relational? See, before that we have used the Access, that is also RDBMS, where we keep the record, where we keep the table, where we keep the rows, columns. So these are all the things are there. Collection of the data and management system means creating file, adding record, deleting record, editing record, sorting record, query record, display record. This all part is called a database. So all things just like that. We are also keeping our lectures record. We are also keeping our attendance record. We are also keeping your results. So these are all keeping records, creating, adding, deleting, editing, okay, sorting, displaying. So these are all the parts is related database, and that we can manage through the RDBMS. And MySQL is also one of the RDBMS, but it is a language, structure query language. So we are आप लोग यहाँ पे कुछ अपने स्टेटमेंट लिख के उस लैंग्वेज के थ्रू डेटाबेस को हैंडलिंग कर सकते हो. दैट मींस MySQL इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग द RDBMS, relational database management system. Is it clear? Is it clear? Hello. Yes, sir. Yeah. So we are handling here database. So some of the terms related database, you know, the database always organized way we keep in the table, and table contains the rows and columns.
So whatever columns heading, that is field. Above side, suppose we are keeping the record of student. So their roll number, name, address, date of birth, that is column. We are giving the heading column, that is called field. So particular information in a database is called column. Roll number, below that we are writing all the roll number. Name, we are below that we are writing the name. Address, below that we are writing the address. That means it's a one column. Address is one column, roll number is one column, name is one column. So particular information in a database is called column. Field. Then second, row. One row contains whole columns value. That's like collection of related columns in a database. We are keeping roll number 1, his name, his address, his date of birth in the one row. That is called record, one record. So table contains rows and column, but columns have a field and rows have record, whole record, just like the first student record, then second, third, just like we are keeping the rows, that means we are keeping the record. So database includes the column, database includes the rows, database includes the table. But what is database? So database is what collection of related rows or records in a database called a table. So here it contains set of rows and columns, related rows. There we are keeping the roll number, below that we are writing roll number, name, below that we are writing name. So just like that we are keeping all the record rows and columns, that is called table, and it keeps one file and it is a dbf file, .dbf table file हमेशा कौन सा रहता है? dbf, database file. So collection of related many tables. एक table बना से आपका database नहीं होता है. Related tables, we can keep the right line. First upon when you enter or when you take the admission in FY, that record we are keeping now also, because we want the FY semester 1, semester 2, then SY semester 3, SY semester 4. This all records we are keeping and we are sending to the university. So it become the database. You are passed in the first sem, second sem, third sem, fourth sem. That's why you can enter in the fifth sem. So this is collection of related tables. It's called a database. That is not the one table, one result table. There are 4 now result tables are there. You have semester 1, 2, 3, 4, and that we are entering in the where in the new fifth sem table, and then they are saying now you are admitted to fifth sem. So that is related table, collection of related table data. Suppose you are taking admissions, and from admission we are keeping the records of attendance, we are keeping the record of marks, we are keeping the records of activity. So that is called database. Collection of related table is called data. So generally database contain tables and table contains rows and column. Got it? Yes, students. Hello. Yes, sir. Got it. Yes, sir. All Yes, sir. column, column मतलब क्या हुआ? Field. जो ऊपर हेडिंग देते हैं, रोज नंबर, आर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, वो हमारा हुआ फील्ड. और कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड कॉलम, जस्ट लाइक दैट, एक पूरा रो, रोल नंबर 1, नेम, एड्रेस, एक पूरा रो फिल किया तो उसको हम लोग वन रिकॉर्ड बोलते हैं. और ऐसे ही सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स मिला के क्या बनता है हमारा? टेबल. और ऐसे बहुत सारे टेबल मिला के हम लोग को क्या बनता है? डेटाबेस. Database. ओके, क्लियर? Yes, sir. Okay, so see that now Yes. diagrammatically. This is one table, admin table. Roll number, name, city, date of birth, telephone number is a columns. These are all columns. ये पूरा schema part आपको दिखा रहा है. Roll number, name, city, that is your column. और ये 2 record है, अजय विजय. That is the one. roll number के नीचे लिखा है 1, फिर name के नीचे अजय, city के नीचे मुंबई, date of birth 1391, टेलीफोन नंबर. से एक 1 रो हुआ. ऐसे कितने रो है? 2 रोज यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट मीन 2 records we are keeping in the one table now at present, right? After that related table, आप देख सकते हो related table नीचे देखो, marks table, रोल नंबर 1 और 2 का another table बना. जो रोल नंबर 1, 2 दे रहे हैं उसके मार्क्स हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, marks 1 and marks 2. So this is another column, roll number, marks 1 and marks 2. This is another table. We are keeping roll number 1 and 2 and their marks also. Okay, so they are extra table. So ये हुआ related table हम लोगों ने create किया. This is relation between that 2 table is there. Roll number is common. You can see the roll number is common. So we can see that roll number 1 का marks 67, 54 है.
रोल नंबर 2 का मार्क्स है, इसका मतलब अजय और विजय का मार्क्स यहाँ डिस्प्ले किया है. गॉट इट? यस स्टूडेंट. Yes, sir. Yes, sir. That is terms related database, all column, rows, table, database, and now it's represent that database table are related. Okay. Next. So how we keep the relationship? So tables in a database can be linked to each other. So relation between linked tables can be described one of the 3 different ways. One to many, one to one first, then one to many, and then many to many. Let's see. One to one. 2 tables have a one-to-one relationship when every record in the first table maps of the one record in the second table. एक टेबल है जिसका रिलेशन सेकेंड टेबल के रिकॉर्ड से भी है, लेकिन वन टू वन. जस्ट लाइक एग्जांपल इज देयर. यहाँ पे देखो पीपल करके टेबल है, यानी के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है. ओके, आईडी दिया है पीपल आईडी को, अलग अलग आईडी नंबर जनरेट हो रहे हैं. नेम है जेन, रायन, एटलेन, सरनेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसने क्या क्या ट्यूटोरियल लिया है, क्या है वो, यंग स्कॉट कार्ड है, उसका स्कॉट कार्ड दिया हुआ है. अभी उसी को लेके उनको एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है सेकेंड टेबल में. जब यंग स्कॉट कार्ड देते हैं तो उसके ऊपर भी डिस्प्ले है. तो उसके ऊपर डिस्प्ले क्या है, देखो यंग स्कॉट कार्ड का यहाँ पे भी वही नंबर दिया है जो ऊपर आपका एक फील्ड नेम मैच हो रहा है मैच, वो फील्ड नेम यहाँ पे आ रहा है. तो दिस इज वन टू वन रिलेशनशिप. यहाँ पे भी सम ऑफ द फील्ड ऑफ द फर्स्ट टेबल इज अ मैच विद द कार्ड आईडी. नाउ सेकेंड टेबल यंग स्कॉट कार्ड, तो यहाँ पे वो नेम, एक्सपायरी डेट और फोटो दिखा रहा है. तो पीपल हैज ओनली वन यंग स्कॉट कार्ड एंड ईच यंग स्कॉट कार्ड इज रजिस्टर्ड टू ओनली वन पीपल. यानी कि एक यंग स्कॉट कार्ड हर एक स्टूडेंट्स को एक ही रहता है. दोबारा वो सेम कार्ड आईडी सेम स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते. गॉट इट? दैट इज वन टू वन रिलेशनशिप. Okay, sir. Yes, sir. समझ में आया? वन टू वन एक ही, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, वन टू वन. यहाँ तो अलग बात है, हस्बैंड एंड वाइफ कितने भी करते हैं वो बात अलग है, जैसे हमारे गर्लफ्रेंड होते हैं. लेकिन एक्चुअल में सिस्टम्स को हम लोग बोल रहे हैं वन टू वन रिलेशंस में वन हस्बैंड वन वाइफ. ओके, One wife. yes. Second, so that is given people has only one young Scott card, one to one relationship. Second one है one to many. Two tables have a one to many relationship. Each record in the first table maps to only one record in the second table. Right? क्या बताया? Each record in the first table map to only one record in the second. एक record है. But each record in the second table maps to multiple record in the first table. क्या बताया? Each record in the second table, हर एक second table का record जो है वो map to multiple record in the first table. वो multiple record first table के match हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे one to many. यानी कि बहुत सारे फील्ड से मैच हो रहा है. अभी एक ही फील्ड से मैच नहीं हो रहा है, बहुत सारे फील्ड से मैच हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वन टू मेनी. जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे भी सेम एग्जांपल उन्होंने लिया है. पीपल यानी कि यहाँ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिया है, जहाँ पे पीपल आईडी है, नेम है, सरनेम है, डेट ऑफ बर्थ है, स्कूल आईडी है, एक स्कूल आईडी दिया. अभी नाउ सेकेंड टेबल है स्कूल आईडी, वहां पे भी नेम है, वहां पे भी एड्रेस है, वहां पे भी पोस्ट कोड है और टेलीफोन नंबर दिया हुआ. तो स्कूल आईडी, वी कैन सी दैट स्कूल आईडी इज अ मैच. अगर हम लोगों ने वन टू और एक टेबल लिया और उसमें भी स्कूल आईडी होगा, तो वी कैन से दैट वन टू मेनी टेबल्स वी कैन रिलेशन. जस्ट लाइक दैट एक टीचर कितने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखा सकता है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3. इट इज रिलेटेड टू वन टू मेनी. So people can be enrolled in one school, but school can enroll many student. People जो है student can enroll in one school. Student एक ही स्कूल में enroll होता है, but school can enroll many students. ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे आप लोग वही स्टूडेंट क्लासेस के लिए enroll हो सकता है, दूसरे कोर्स के लिए enroll हो सकता है. So what is that? One to many relationship. Got it? Teacher can enroll student 1, many students, right? Understood? So Yes, sir. क्या दिया है? Yes. Student enroll in school, one to many. Okay. Then next, many to many. Two tables have many to, मतलब एक दूसरे टेबल से बहुत सारा रिलेशन. Each record in the first table
मैप्स टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन द सेकेंड टेबल. पहला टेबल दूसरे बहुत सारे टेबल से रिलेटेड है, दूसरे टेबल भी दूसरे और टेबल से रिलेटेड है. सो ईच रिकॉर्ड इन द सेकेंड टेबल टू मल्टीपल रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल, उसको बोलते हैं मेनी टू मेनी रिलेशन. जैसे एग्जांपल में यहां दिया है पीपल, सेम एग्जांपल स्टूडेंट है, कोर्स. एक स्टूडेंट्स कितने भी कोर्स अलग अलग ले सकता है. जैसे उसने लिया है सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस भी लिया है और मैथ्स भी लिया है. ओके तो कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, अलग अलग कोर्सेस कर रहे हैं. तो पीपल कैन स्टडी मेनी कोर्सेस. कोर्स क्या है? मेनी स्टूडेंट्स, पीपल स्टडिंग इन इट. ओके एक कोर्स में कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड देयर आर वन मेनी टू मेनी. जस्ट लाइक दैट एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा मिनिस्टर बोले, मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर में फायर चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, पुलिस मिनिस्टर और पुलिस चीफ हो सकते हैं, मेयर हो सकते हैं, एनी पॉलिटिशियन पर्सन हो सकते हैं, जो जो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं. तो वह हम लोग बोलते हैं क्या? मिनिस्टर टेबल. लेकिन मिनिस्टर में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, तो मेनी टू वन रिलेशन टीम और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आता है. जैसे स्टूडेंट वन कैन एनरोल इन योर कोर्स वन and enroll in the other diploma, other classes, other tuitions. So what is that? Other relation. इसकी तरह टेबल्स का रिलेशनशिप क्रिएट होता है. तो यहाँ पे मेनी टू मेनी उन्होंने बताया हुआ है, बट यहाँ मेनी टू मेनी में इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट मेनी टू मेनी बिटवीन टू टेबल्स इन अ डेटाबेस. इंस्टेड वी नीड हैव अ जंक्शन टेबल. जंक्शन मतलब जॉइन टेबल. हम लोग को टेबल ज्वाइन करना पड़ता. सो यहाँ पे मेनी टू मेनी पीपल, कोर्स और कोर्स टेकन ऐसे ज्वाइन करके हम लोग टेबल बना, मतलब मर्जिंग, टेबल को मर्ज करना पड़े, ज्वाइन करके एक दूसरा टेबल बना के दिखाना पड़ता. जस्ट लाइक दैट इन दैट एग्जांपल, स्टूडेंट हैव द कोर्स एंड कोर्स टेकन, उन लोग की लिस्ट अलग दी है, पीपल आईडी एंड कोर्स आईडी भी उन्होंने दिया हुआ है अलग से. सो दिस वे वी हैव टू सी दैट रिलेशनशिप. का आपको रिलेशनशिप में क्या समझ में आया? There are actual में 4 relationship are there. 1 to 1, husband wife. 1 to many, teacher, student 1, student 2, student 3, many. 1 to many, one teacher can teach many student. Many to 1, minister, वहां पे फायर चीफ हो सकता है, पुलिस चीफ हो सकता है, मेयर हो सकता है. तो that is many to 1 relationship. And many to many, that means student can take course 1, course 2. Student 2 can take the course 3, course 1. Yeah, student 3 can take course 2, course 3. Any course. Got it? Yes, student? Yes, yes, sir. Clear about that? Now, Yes. next concept sir. related database. Database structure. आज हम लोग को सॉफ्टवेयर चालू करके देखना है, लेकिन उसके पहले ये कंसेप्ट क्लियर करने हैं. व्हाट आर द कंसेप्ट्स आर रिलेटेड? डेटाबेस, बिकॉज वी आर मैनेजिंग द डेटाबेस. तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ यू गॉट इट. रिलेशनल डेटाबेस मतलब है, डेटा मतलब फैक्ट्स, द इंफॉर्मेशन, and the base information we are collecting and that we are keeping in organized way, and related we are keeping. So related database management system. एक टेबल में नोट रहे, रोज लिख रहे, कॉलम लिख रहे, ताकि we can add the record, we can delete the record, we can update the record, edit the record, sorting the record, display the record. उसी को हम लोग database management बोलते हैं. Got it? So database Yes, structure. sir. या डेटाबेस स्ट्रक्चर. अभी स्ट्रक्चर की बात हुई तो ऑफ कोर्स डेटाबेस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा. डेटाबेस क्या होता है? सिस्टम और ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा. आपको मैंने बताया कि आपके सोसाइटी के कितने फ्लैट है, उनका इंफॉर्मेशन निकालो, नेम, एड्रेस, ओनर नेम, ओनर एड्रेस, ओनर के सबके डेट ऑफ बर्थ, ताकि हम लोग उनको विश कर सके, उनके नाम लिख सके, उनके फ्लैट के नाम, सब मेंबर्स, कितने मेंबर्स रहते हैं उधर. ये सारी चीजें हम लोग कीपिंग अगर रिकॉर्ड में रखेंगे तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को ये सब रखना पड़ता है. यस और नो? सेक्रेटरी कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द व्हाट all society members. So that is called society members table, and it keep the record in a system way for organizing and storing data. Database are made up of one or more files. आप एक टेबल नहीं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेबल बना के रिक्वायर्ड फील्ड नेम के हिसाब से हम लोग डेटाबेस को रख सकते हैं. So files are a collection of that record, and records are made up of fields, just like that. तो यहाँ पे देखो बताया हुआ है, उन्होंने वही चीजें बताई हुई है. यहाँ देखो फिल्म दी है,
ओके फिल्म के नाम दिए अलग अलग, रिकॉर्ड्स है आएगा, रिकॉर्ड्स में डायरेक्टर के नाम है, क्लासिफाइड किया है कि आपको अंडर 15, अंडर 12, एडल्ट और नॉट, कैटेगरी दिया है किड्स, एक्शन, ड्रामा, म्यूजिक, कॉमेडी लाइक किड्स एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हो ये 4 कैटेगरी में हम लोग को मूवी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। फिल्म्स, कौन सी फिल्म का नाम, डायरेक्टर का नाम, क्लासिफिकेशन, कैटेगरी। तो हम लोग को वी कैन एक्सट्रैक्ट और रिक्वायर्ड डेटा निकाल सकते हैं अगर हम लोग को चाहिए। इसमें से क्वेरी, क्वेरी इज व्हाट, कंडीशन वाइज वी कैन एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड। क्वेरी लिख के हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा। सब अंडर 15 वाले सारे मूवीज दिखाओ, तो हम लोग उसमें से फिल्टर करके वी कैन सी द रिकॉर्ड्स ऑफ अंडर 15। किड्स वाले कैटेगरी के सब रिकॉर्ड दिखाओ, तो वो किड्स के फिल्म दिखाएंगे। तो ये सारे डेटाबेस स्ट्रक्चर की वजह से वी कैन इजीली फाइंड द रिकॉर्ड, सॉर्टिंग द रिकॉर्ड, सर्च द रिकॉर्ड एंड ऐड, इंसर्ट, डिलीट, मैनिपुलेशन पार्ट कर सकते हैं। इसको मैनिपुलेट, डेटा मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो एसक्यूएल इज अ डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड ओके डेटा डीडीएल एंड एसक्यूएल। तो डीडीएल मतलब क्या, एसक्यूएल इज अ माइस्क्यूएल हम लोग सीखने वाले हैं, उसमें आगे आपको पता चलेगा। डीडीएल, डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। देन डीएमएल, डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देन डीसीएल, डीसीएल मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और एसक्यूएल, एक्सएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एंड सम ऑफ द पार्ट वी कैन डू इट थ्रू द ट्रांजैक्शन, दैट इज वी आर डूइंग विद द माइस्क्यूएल। और यही पार्ट हम लोग को सीखना है डीडीएल में। डेटा क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, ड्रॉप करना, डिलीट करना, फिर रिकॉर्ड इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, फिर उसके बाद उसके ऊपर कंट्रोल करना, फिल्टर करना एंड ऑल्सो ट्रांजैक्शंस करना। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, तभी हम लोग को MySQL समझ में आएगा। तो दैट इज डेटाबेस स्ट्रक्चर, गॉट इट। तो इस कॉलम रिप्रेजेंट अ फील्ड, each row represent a record, okay, clear? Then after Yes, that sir. फ्लैट फाइल, एक फ्लैट फाइल भी होती है, जैसे एक्सेल की फ्लैट फाइल होते हैं। एक्सेल में हम लोग एक्सेल जो भी बनाते हैं ना एक्सेल, उसको हम लोग फ्लैट फाइल बोलते हैं। इट इज अ नॉर्मल, देयर आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम्स गिवन, ए बी सी डी, column headings are there, 1 2 3 4 rows are there, so it is flat file. It is a database structure which consists of only a single table. उसमें हम लोग एक ही टेबल, एक हम लोग देखते थे, एक ही टेबल बनाते हैं, राइट ना। So while this is a simple way to store files, and a flat system becomes increasingly inefficient as the more data is added, लेकिन वो थोड़ा inefficient होता है, just like हम लोग अभी बनाएंगे और उसमें वो different होता है। यहाँ पे efficient होता है, organized भी होता है। वहाँ कैसे हम लोग को मिला वही एक ही टेबल हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसका रिलेशन क्रिएट करने के लिए बहुत आपको तकलीफें लेनी पड़ती है, यहाँ वैसे नहीं है। So that's why flat file, just in the Excel we are keeping one record at a time, that is flat file database. Now after that they are defining that data structure में data क्या है, collection of the raw facts, raw material। कोई भी आप रफ में लिखते हो, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, नेम लिखा, ऑर्गेनाइज कैसे करते हो? मोबाइल में कॉन्टैक्ट के नाम डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हो, उसकी ईमेल आईडी डालते हो, उसके एड्रेस डालते हो। ऑर्गेनाइज डायरी, पर्सनल डिजिटल डायरी जैसे बनाते हो वैसे बोलते कॉन्टैक्ट डायरी। दिस इज डेटाबेस। डेटा स्ट्रक्चर, इट इज अ रिप्रेजेंट ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ डेटा। ओके, लॉजिकली आप सोचते हो, लॉजिकली देखते हो उसको कैसे ऑर्गेनाइज में रखना है, एंड देन वी कीप द फील्ड नेम्स, वी कीप द रिकॉर्ड एंड इन इंडिविजुअल्स। आप एक टेबल बनाते हो, उसी को डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड इट इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट for organizing and storing data in a memory, and that consider not only the element store but also their relation to it. जैसे आपको मैंने बताया, आपके मोबाइल में आप लोग इतने फोटोज निकालते हो, रिकॉर्ड रखते हो, कभी किसी ने ऑर्गेनाइज वे रखा है क्या? आप रखते हो ना मोबाइल में भी ऑर्गेनाइज वे? हाँ या ना बोलो? yes? खुद ही हो जाता है आजकल के मोबाइल में। ऑटोमेटिक Okay. होता है। ऑटोमेटिकली होता है? नो, एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स होते हैं। जैसे आपका मोबाइल में इमेज कैप्चर्स होते हैं, DCIM फोल्डर होता है बाय डिफॉल्ट, उसमें चला जाता है। यानी कि दिस इज अ डिजिटल कैमरा का इनपुट है, वो वहां पे स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? एल्बम बनाने पड़ते हैं।
फोल्डर्स बनाने पड़ते, फोटो फुल एल्बम होते हैं ना, और हम लोग ऑर्गेनाइज क्या कर सकते हैं, जैसे एक फंक्शंस में आपने फोटो निकाले, अपने फंक्शंस का फोल्डर को नाम दिया और सारे फोटो उसके अंदर क्या किए, स्टोर कर लिए, तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, वी आर कीपिंग द रिकॉर्ड इन ऑर्गेनाइज वे। गॉट इट, समझ में आया डेटा Yes, स्ट्रक्चर? sir. हाँ, Yes, ऐसे sir. ही रिकॉर्ड रखने के बाद उसको हम लोग जब चाहिए तभी एक्सट्रैक्ट करें। तो वेबसाइट भी यही काम कर रहा है, गूगल भी यही काम कर रहा है। गूगल्स आर कीपिंग द रिकॉर्ड इन ऑर्गेनाइज वे। वो जितने भी वेबसाइट नए लॉन्च होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज वे स्टोर करने का काम कर रहा है। कीवर्ड सर्चिंग, डायरेक्टरी सर्चिंग, कैटेगरी सर्चिंग। ओके, तो आप जैसे कैटेगरी वाइज लिखते हो, रिकॉर्ड लिखते हो, वैसे वो डेटा सर्च होता है बिकॉज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा आर रिलेटेड, डेटा रिलेटेड मतलब समझे, अगर आपने आज भी जाके लिखा TY BCom 5th सेम MySQL, तो उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। Why it is? Because they keep the record in a structure wise. Okay, clear? So there are 3 database Yes, sir. structures in traditional. ट्रेडिशनल में 3 database structures आते हैं, 3 types: hierarchical, then network and relational. तो सबसे पहले मुझे hierarchical दिया। Each parent records, यहाँ पे parent records कौन है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी। It can have a 1 or more child record, arts, commerce, science, ये parents हुए, जैसे grandfather, फिर उनके बच्चे यानी कि फादर, अंकल, ओके। आफ्टर दैट आपके नाम, फादर के सन, डॉटर, लाइक दैट, इट इज हायरार्चिकल। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, मुंबई यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट द 3 कोर्स, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। इन आर्ट्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, they are saying commerce, BCom, BMS, they are saying science, BSc, ID, BSc, many we have, और भी रहेंगे, आर्ट्स के अंदर और आएंगे, कॉमर्स के अंदर, साइंस के, बट जस्ट हियर वी आर रिप्रेजेंट द हायरार्चिकल स्ट्रक्चर। इट जस्ट लाइक दैट, grandparents, parents, child. So each parent's record can have 1 or more child record, but no child record can have a more than 1 parent record. यहाँ क्या बताएं, but no child can have more than 1 parent record. कोई भी child को वापस parent record नहीं, तो इसका मतलब आगे कुछ पेरेंट रिकॉर्ड दिया नहीं है, तो इट इज रिप्रेजेंट द हायरार्चिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। इट इंप्लीमेंट्स 1-to-1 and 1-to-many रिलेशनशिप। ओके, 1-to-1 and 1-to-many रिलेशनशिप वी कैन क्रिएट। जैसे आर्ट्स का रिलेशन इंग्लिश इको से, कॉमर्स का रिलेशन BCom BMS से, साइंस का रिलेशन BSc BSc कंप्यूटर साइंस से, वैसे ही now 1-to-many relationship also create. जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी have the 3 related arts, commerce, science. It means it can represent the English, Eco, BCom, BMS, BSc ID and BSc also. 1-to-many relationship. Got it? Yes, student? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, second one है network database structure. In this case, all 4 types, 1-to-1, 1-to-many, many-to-1 and many-to-many, all are possible. All are possible. So यहाँ पे देख सकते हो कि मुंबई यूनिवर्सिटी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस है, लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन टेक also इकोनॉमिक्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन also take the BSc IT at present. Yes, it is possible. Science students also can take the BMS or economics. So mix up network database, इसको नेटवर्क बोलते हैं। कि कैसे, कॉमर्स स्टूडेंट के पास अगर मैथ्स है तो BSc IT कर सकते हैं। Science students can do any stream, arts and commerce, but arts student cannot do the directly science stream. Is it clear? Arts cannot do the directly BSc IT. उनको नहीं अलाउड है क्योंकि उनको मैथ्स नहीं। अगर मैथ्स है तो BSc IT अलाउड है, 45% अबव BSc IT। तो इसका मतलब इज अ नेटवर्क डेटाबेस स्ट्रक्चर। ऑल 1-to-1, 1-to-many, many-to-many, many-to-1 relationship can represent over there. Third one, relational. That already we have seen. In this case, at least one field is common. यहाँ पे roll number common है in each field, and relation is established on the basis of that common field. ये दोनों में एक field name common है, इसके लिए ये दोनों टेबल एक दूसरे से related है, इसलिए उसको बोलते हैं relational database structure. Got it? समझ में आया? तीनों database structure समझ में आए? Hierarchical, network and relational. So
इसके लिए जैसे कॉमन फील्ड के लिए हम लोग को की रिक्वायर्ड होती है, कैंडिडेट की। जैसे हम लोग बोलते हैं व्हाट इज योर रोल नंबर, दैट इज कैंडिडेट की। ओके, व्हाट इज योर पीआरएन नंबर, दैट इज कैंडिडेट की। व्हाट इज योर स्टूडेंट आईडी, that is candidate key. So it is any set of one or more columns whose combined values are unique among all occurrence. किधर भी जाओगे वो कॉमन वैल्यू occurrence होती है। जैसे पीआरएन नंबर, आप यूनिवर्सिटी में किधर भी जाओ, आपका पीआरएन नंबर दो, आपकी हिस्ट्री मालूम हो जाएगी। सो देयर आर एनी नंबर दैट इज कैंडिडेट इन टेबल। कितने भी कैंडिडेट की हो सकते हैं, आपका नाम, आपके नाम से जान सकते हैं, आपके पीआरएन से जान सकते हैं, आपके रिजल्ट से जान सकते हैं, बहुत सारी चीजें, कॉलेज के कोड से जान सकते हैं। सो दिस आर ऑल कैंडिडेट की, बट प्राइमरी की इज ओनली वन। ओके, सो जैसे रोल नंबर, हम लोग, आप TYBCom को रोल नंबर 1 दे रहे, तो रोल नंबर 1 आपको ही दे रहे, दूसरे को नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ प्राइमरी की। TYBCom 2020 रोल नंबर 1 जो भी नाम है उनको अजय, तो वो 1 अजय को दिया है, वो 1 दूसरे को रोल नंबर विजय को नहीं दे सकते बिकॉज वी हैव क्रिएटेड प्राइमरी की। सो प्राइमरी की इज एनी कैंडिडेट की ऑफ दैट टेबल विच द डेटाबेस डिजाइनर सिलेक्ट एज अ प्राइमरी। जब हम लोग डिजाइन करते हैं टेबल, तब हम लोग को एक टेबल में एक प्राइमरी की सेट करना होता है। क्या बताया मैंने? हर एक टेबल जब आप लोग डिजाइन करोगे तो उसमें कोई भी एक फील्ड को आपको प्राइमरी की देना पड़ेगा। जैसे आपने रोल नंबर को दिया तो इट कैन नॉट यूज डुप्लीकेट रोल नंबर। अगर आपने नेम को दिया तो इट कैन नॉट यूज डुप्लीकेट नेम। आपने एड्रेस को दिया तो इट कैन नॉट यूज द डुप्लीकेट एड्रेस। ऐसे हम लोग प्राइमरी की किसी को भी एक को ही सेट कर सकते हैं। देन फॉरेन की, प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल, जब दूसरे टेबल को हम लोग प्राइमरी की देते हैं, हुज वैल्यू मैचेस विद द करंट कॉलम, अभी के टेबल में वो मैच हो रहा है। इसका मतलब सपोज एड्रेस आर मैचेस विद द अनदर टेबल ऑफ एड्रेस और अनदर एनी फील्ड नेम वैल्यूज, उसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। जैसे यहाँ पे रोल नंबर, नेम, एड्रेस लिखा है और दूसरा टेबल है जिसमें हम लोग ने खाली नेम और एड्रेस लिखे। अभी कुछ एड्रेसेस मैच हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे ये फील्ड नेम की वैल्यू उस पहले वाले टेबल के फील्ड नेम वैल्यू से मैच हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन की। एंड देयर कैन बी मोर देन वन फॉरेन की कैन रिप्रेजेंट। गॉट इट? ऑल कीज? यस? हेलो स्टूडेंट, गॉट इट? Yes. यस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। MySQL हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपके कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। उसमें आपको मैंने ऑलरेडी SQL को बताया व्हाट इज MySQL। तो हम लोगों ने SQL के बारे में बताया। MySQL इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इट इज मैनेजिंग द RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ऑल्सो बताया SQL इज अ DDL, DML, DCL एंड DQL। तो व्हाट इज दैट? डेटाबेस definition language, database manipulation language, database control language and database query language। DDL यहाँ पे हम लोग को कमांड आने वाले हैं create table, drop table, alter table। और डेटा मैनिपुलेशन में कमांड आने वाले हैं insert, recording, insert, select, delete, update query। कंट्रोल में आने वाले grant, revoke। ट्रांजैक्शन में आने वाले rollback, commit। और क्वेरी, मेनी क्वेरी वी हैव टू सी। तो यहाँ पे आपको 32 मार्क्स का जो वेटेज है वो MySQL में, तो वो MySQL टोटली क्वेरी के ऊपर डिपेंड है। तो लेट्स सी नाउ, क्वेरी करने के लिए पहले हम लोग MySQL स्टार्ट कर लेते और MySQL का मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो लेट्स सी द MySQL प्रैक्टिकल। इसके बाद जो भी सेशन होंगे वो पीपीटी नहीं होगी, डायरेक्ट रिप्रेजेंट विद द प्रैक्टिकल सेशन। तो आपका बुक आपके सामने रहना चाहिए, या अदरवाइज मैं आपको जो भी आपको ले वो आपको नोट डाउन करना होगा हर टाइम में। इज इट क्लियर? इसके बाद आपके पीपीटी नहीं रहेंगे, आपके डायरेक्टली प्रैक्टिकल सेशन होंगे, क्योंकि MySQL इज अ प्रैक्टिकल पार्ट। और जो प्रैक्टिकल समझ में आया तो ही आप वो क्वेरी समझ सकते हो। गॉट इट? इसके लिए आप लोग MySQL डाउनलोड कर सकते हो। इट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर। MySQL GPL है, जनरल पब्लिक लाइसेंस है। GPL मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस। आप डाउनलोड कर लो। MySQL 5.1 सर्वर है, वो नेक्स्ट करिए। उसमें रूट उसका यूजर नेम होता है और पासवर्ड यू हैव टू सेट। यहाँ आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। यू कैन सेट एनी पासवर्ड। मैंने एडमिन करके रखा हुआ है। और एडमिन एंटर करने के बाद आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट आएगा MySQL, और उस कमांड प्रॉम्प्ट में भी स्टेटमेंट हम लोग को लिखने होते हैं।
तो लेट्स सी द MySQL. ओके, तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है. जब आप इंस्टॉल करोगे स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, उसी के अंदर आपको MySQL यहाँ पे फोल्डर दिखाई देगा और वहां पे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट दिखाई देगा. तो यू हैव टू क्लिक ऑन MySQL कमांड लाइन, या रन में आप MySQL लिखोगे तो MySQL स्टार्ट हो जाएगा. व्हेन यू इंस्टॉल नहीं है तो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होगा. दिस इज MySQL exe फाइल. ये मैक्सिमाइज नहीं होगा बिकॉज आपका ये जो भी पार्ट है, मैक्सिमाइज मतलब फुल स्क्रीन आपका जितना है इतना ही आपको फॉन्ट में दिखाई देगा. इसके लिए आप प्रॉपरली देखो, क्योंकि MySQL में फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का कोई ये नहीं है. इट इज डॉस बेस्ड, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसके अंदर का ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला एप्लीकेशन है. नाउ हियर वी आर टाइपिंग द पासवर्ड एडमिन, वी आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. अगर आपको इंस्टॉल कैसे करना है वो भी देखना है तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी आप लोग को जस्ट हाउ टू स्टार्ट MySQL बता रहा हूँ. सो एंटर पासवर्ड एडमिन, प्रेस एंटर की. सो एंटर करने के बाद क्या आ गया, कमांड प्रॉम्प्ट. ये आपका वेलकम टू MySQL बता रहा है, कॉपीराइट क्या है वो बता रहा है, उस सॉफ्टवेयर का वर्जन एंड ऑल दैट. अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो /h करके दे सकते हो, क्लियर करना है तो /c दे सकते हो, तो करंट इनपुट क्लियर हो सकता है. और MySQL आप लोग का कमांड प्रॉम्प्ट इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्या रहेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डेटाबेस ऑलरेडी है क्या वो चेक करना है. तो पहला कमांड, तो आप बुक लेके बैठ जाओ और आप लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हो. शो डेटा बेसिस, क्या लिखा मैंने, शो डेटा बेसिस सेमीकोलन, एंटर. तो आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट इंफॉर्मेशन स्कीमा, एम्प्लॉय, लॉगिन डीबी, MySQL स्टूडेंट टेस्ट, ये सारे हम लोग को क्या दिखाई दे रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस दिखाई दे रहे हैं. क्लियर? यस स्टूडेंट, हेलो. Yes, sir. ओके, तो दिस इज द कमांड, ये इसको बोलते हैं कमांड, शो डेटाबेसेस सेमीकोलन, दैट इज इंडिकेटिंग एंड ऑफ द कमांड. तो ईच एंड एवरी कमांड वी हैव टू, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट वी क्लोज द सेमीकोलन. तो यहाँ मैंने कमांड खत्म होने के बाद सेमीकोलन लिखा, एंटर किया, तो मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है कि डेटाबेस कौन कौन से है. तो ये कॉलम हेडिंग दिया है और इसके अंदर हम लोग को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस बता रहा है. वी आर क्रिएटिंग द डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, सपोज स्टूडेंट करके ऑलरेडी है तो मैं TYBCom लिखता हूँ, TYBCom. ओके, सेमीकोलन, एंटर. देखो वहां मैसेज आया, क्वेरी ओके, वनड्रॉ अफेक्टेड, मतलब डेटाबेस बन गया. अभी मैं अप एरो की कर रहा हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमांड अप एंड डाउन एरो की से ऊपर आ रहे हैं, अप एंड डाउन. तो यहाँ पे शो डेटाबेस वापस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ तो मेरा नाम इधर आ गया, ऐड हो गया, TYBCom. नाउ 7 rows in set, that means database created. Got it? Yes students, तो आज के लिए काफी है. क्लियर? Yes, sir. Just stop the sharing now. Yes, sir. आपकी अटेंडेंस है 32 स्टूडेंट्स. ओके, जस्ट आई मेक द प्रिंट स्क्रीन. वेट.